সারা বাংলায় কালা দিবস পালন করছে, কিন্তু কলকাতাতে করছে না। তার কারণ অমিত শাহ অন, তৃণমূল গণ। কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে তৃণমূল, এরপরে বাংলা ছেড়ে পালাবে। আজ এই যুব সমাবেশের মাধ্যমে একটা কথা পরিষ্কার বলতে চাই, হে বাংলার যুবক, যদি রোজগার চান, এই তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা রোজগার হবে না। এই সরকার সব শিল্পকে শেষ করে এখন তোলাবাজি শিল্প চালাচ্ছে। তোলাবাজি শিল্প সারা বাংলায় দিদির ভাইয়েরা মদের ভাটি খুলে চোলাই শিল্প চালাচ্ছে। ঢুকু ঢুকু পিও আর যুগু যুগু জিও এর অবস্থা তৈরি করেছে। এ সরকার বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ সরকার বাংলার ন্যূনতম উন্নতি করতে পারবে না। আজ এত বছর হয়েছে, শিক্ষায় বাংলা পিছিয়েছে, শিল্পে বাংলা পেছাচ্ছে, স্বাস্থ্যে বাংলা পেছাচ্ছে, মেধায় বাংলা পেছাচ্ছে, সংস্কৃতিতে বাংলা পেছাচ্ছে। যুবকের মান উন্নয়নে বাংলা আজ পেছন দিকে যাচ্ছে। তাই ক্ষুদিরাম বসুর বাংলা, এ বাংলাকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। ক্ষুদিরাম বসু উনি দেশকে স্বাধীন করবার জন্য ফাঁসি কাটে ঝুলেছিলেন। দেশকে স্বাধীন করবার জন্য ক্ষুদিরাম বোস ফাঁসি কাটে ঝুলেছিলেন। আর स्वागतम सुस्वागतम अमित शाह स्वागतम अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम 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 बीजेपी राष्ट्रीय सभापति अमित शाह जी स्वागतम 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 बीजेपी राष्ट्रीय सभापति अमित शाह जी स्वागतम 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 अमित जी आगे बढ़ो, আমরা তোমার সাথে আছি। সাথে আছি অমিত জি আগে বাড়ো, আমরা তোমার সাথে আছি। সাথে আছি ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহ জি স্বাগতম। स्वागतम स्वागतम এই তৃণমূল বাংলা ছাড়ো, বাংলা ছাড়ো বাংলা ছাড়ো তৃণমূল বাংলা ছাড়ো। ছাড়ো বাংলা ছাড়ো অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহ জি স্বাগতম। स्वागतम स्वागतम অমিত শাহর নেতৃত্বে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। লড়ছে লড়বে অমিত শাহজির নেতৃত্বে বিজেপি লড়ছে, লড়বে। লড়ছে লড়বে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জয়বাদ সম্বল স্বাগতম बीजेपी जिंदाबाद স্বাগতম স্বাগতম स्वागतम सुस्वागतम अमित शाह जी स्वागतम 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 वेलकम वेलकम अमित शाह जी वेलकम 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 अमित शाह जी वेलकम 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 अमित शाह जी वेलकम सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्र के गौरव, जिनके दम पर हम पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे पश्चिम भारत तक का भारतीय जनता पार्टी की ध्वजा पताका लहरा रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने देश के 75% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है, ऐसे
अध्यक्ष जी का स्वागत जोरदार नारों के साथ में होना चाहिए। भारत माता की, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। আমার বলতে বলতে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আদরণীয় অমিত শাহজি পৌঁছে গেছেন, তাই আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত করব না। আগামী দিন বাংলার লড়াইয়ের জন্য যুব বাহিনী তৈরি হন, পরিষ্কার স্লোগান তুলুন, তৃণমূল হাটাও, তৃণমূল হাটাও। এনআরসি নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা শরণার্থীদের সঙ্গে আছি, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিজেপির লড়াই চলবে। বন্দে মাতরম। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় রাহুল মহাশয়কে। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী অমিত শাহ মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী মুরলীধর রাও মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা এই পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক মাননীয় শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয় মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃত্ববৃন্দ। এখন আমরা আমাদের বরণ পর্ব সেরে নেব। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করব সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী অমিত শাহ মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। भारत माता के, भारत माता के। এবার অনুরোধ করব ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় দেবজিৎ সরকার মহাশয়কে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী মাননীয়া শ্রী পুনম মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। भारत माता के, भारत माता के बंदे। এরপরে আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় শ্রী দেবজি সরকার মহাশয়কে অনুরোধ করব একে একে সবাইকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে 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 বন্দে। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, माननीय अमित शाह महाशय जिंदाबाद, सर्वभारतीय सभापति अमित जी जिंदाबाद, सर्वभारतीय युवा नेत्री पूनम जी जिंदाबाद, दिलीप दा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। অনুরোধ করব যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী তাপস ঘোষ মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় শ্রী দেবজি সরকার মহাশয়।
মঞ্চে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি সম্মাননীয় শ্রী অমিত শাহজি, মঞ্চে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি সম্মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আমাদের সবার প্রিয় দিলীপ দা, মঞ্চে উপস্থিত অন্যতম কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ত্রয় সম্মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়জি, সম্মাননীয় মুরলীধর রাওজি, মাননীয় শিব প্রকাশজি, সম্মাননীয় সম্পাদকদ্বয় শ্রী রাহুল সিনহা এবং সুরেশ পূজারীজি, আমাদের এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত 2 এমপি সম্মাননীয় আলুওয়ালাজি এবং সম্মাননীয় বাবুলদা, আমাদের প্রিয় বাবুল সুপ্রিয়, রূপা গাঙ্গুলি এবং আমাদের এই মঞ্চের আজকে যার জন্য এই কার্যক্রম হচ্ছে, আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী শ্রীমতী পুনম মহাজন, আমাদের প্রিয় পুনম মহাজন দিদি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন, যারা এই প্রচণ্ড রোদকে উপেক্ষা করে দলে দলে এই মঞ্চের যেই জনসমাবেশে সমাবেত হয়েছেন, তাদের সবাইকে জানাই জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন এবং এই মঞ্চে আসার জন্য, এই সমাবেশে আসার জন্য প্রাণ ভরা স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ আজকের এই পুণ্যদিন অর্থাৎ শহীদ ক্ষুদিরামের 111তম মৃত্যুবার্ষিকীর যে বলিদান দিবস, সেই দিনে এই মহা যুব স্বাভিমান সমাবেশের আয়োজন করেছে। বন্ধু, আপনারা জানেন কি অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রথম 34 বছর, তারপরে 7 বছর ভারতবর্ষের এই প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশটি একের পর এক দিন ধরে চলছে এখানে রক্তের হোলি এবং একের পর এক প্রাণ চলে যাচ্ছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক তরজায়। গণতন্ত্র বলে কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই, সব জায়গাতে গণতন্ত্র বিমুখতা। এবং নতুন যে মুখ্যমন্ত্রী গত 6 বছর ধরে আমাদের এখানে শাসন করছেন, বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু মহিলাদের ওপরে যে অত্যাচার হচ্ছে তা কহতব্য নয়। আমরা এখানে বলেছিলাম আমাদের এই সমাবেশের লক্ষ্য ইতিবাচক লক্ষ্য। আমরা বলিনি দিদিমণি আপনি আমাদের 2 টাকা কেজির চাল খাওয়ান, আমরা বলেছিলাম 2 টাকা কেজির চাল ভিক্ষে দিতে হবে না, সবাইকে রোজগার দাও। যুব সমাজ রোজগার চায়, ভিখিরি হতে চায় না, কোনো মতেই নয়। কে বলেছে আপনাকে 2 টাকা কেজির চাল খাওয়াতে? বাংলার 70% মানুষকে আপনারা ভিখিরি বানিয়ে দিচ্ছেন ভারতবর্ষের বাকি অংশের চোখে। আমরা শুধু রোজগারের একটা সমরোজগার, সমবন্টন, এসব বড় বড় কথা বলিনি, রোজগারের একটা পরিবেশ চেয়েছিলাম। দিদিমণি অবশ্য সিন্ডিকেট কিংবা অন্য অন্য রকমের রোজগারের ব্যবস্থার কথা বলেছেন। 75% টাকা যদি পার্টির নামে তুলে টাকা যদি পার্টিকে জমা দেওয়া যায়, তাহলে বাকি 25% নিজের পকেটে রেখে রোজগার করা যায়। দিদিমণি শিখিয়েছেন, দিদিমণির পার্টি শিখিয়েছেন মানুষকে, যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কলেজে ভর্তি হবে তাদের কাছ থেকে গোটা গোটা বড় বড় টাকার অ্যামাউন্ট নির্দিষ্টভাবে শিক্ষাবর্ষে নির্দিষ্ট বিষয়ে ভর্তি হতে গেলে দিদির ভাইরা নিতে পারেন। আজকে আমাদের গণতন্ত্র শেখাচ্ছেন, আজকে লিখছেন যে বিজেপি গো ব্যাক, আজকে লিখছেন বাংলার জন্য বিজেপি ক্ষতিকর, আর সৌজন্যের কথা বলছেন দিদিমণি। তাকিয়ে দেখুন সৌজন্য কাকে বলে। এইখানে যে বদরামি, যে ইতরামি তৃণমূল কংগ্রেস করেছে,
এই মেয়রট পাওয়ার পর থেকে গত 4 দিন ধরে সারা পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত রাজনৈতিক অসৌজন্যের সমস্ত আঁকড়াকে ভেঙে দিয়েছে। আমরা আপনাদের একটাও পতাকা ছিঁড়িনি, আমরা আপনাদের একটা ভোটকে টেনে নামিয়ে দিইনি। সৌজন্য শিখুন আমাদের কাছ থেকে। 18 বছরের যিনি আমাদের আইকন, আমাদের যুব সমাজের প্রতিভু, 18 বছর 8 মাস 8 দিন 1908 সালে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েছিলেন হাসতে হাসতে। বাংলার ঘরের ছেলে, ভারতবর্ষের সর্বকনিষ্ঠ, যিনি কিনা শহীদ, সেই ক্ষুদিরামের আজকে বলিদান দিবসে আমরা বলতে চাইছি, আমাদের এই জনসমাবেশ আমরা ক্ষুদিরামের নামে উৎসর্গ করছি, যে পথে ত্রিলোচন মাহাতো সমেত আমাদের 27 জন হেঁটেছেন। আমরা আমাদের এই সভা এর পরবর্তী বক্তারা বলবেন তাদের জন্য। আর আপনারা যারা এসেছেন সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানিয়ে বক্তব্যের বিরাম টানছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম। অসংখ্য ধন্যবাদ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় শ্রী দেবজি সরকার মহাশয়কে। এবার আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। এই যুব স্বাভিমান সমাবেশের সুদৃশ্য মঞ্চে উপস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় অমিত শাহ মহোদয়, যিনি পশ্চিমবঙ্গের কার্যকর্তাদের প্রতি তার বিশেষ আশীর্বাদের হাত সবসময় বাড়িয়ে রেখেছেন, মাসের পর মাস উনি আমাদের এসে উৎসাহবর্ধন করছেন, তাকে আমি প্রথম অন্তর থেকে স্বাগত করছি। সেই সঙ্গে যেই যুবদের আজকে এই কার্যক্রম, যাদের স্বাভিমান প্রতিষ্ঠার জন্য এই কার্যক্রম, তার সর্বভারতীয় সভানেত্রী শ্রীমতী পুনম মহাজন আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রথমবার এসেছেন, তাই রাজ্য সভাপতি হিসাবে তাকে আমি স্বাগত করছি। তার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের লড়াকু যুব সভাপতি দেবজিৎ সরকার উপস্থিত আছেন। এর সঙ্গে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বভারতীয় নেতা, দুজন সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সর্বসময়ের অভিভাবক মাননীয় কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং যুব মোর্চার অবজারভার মাননীয় মুরলীধর রাওজি, তারাও উপস্থিত আছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলার দুজন নির্বাচিত এমপি এবং দুজনেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী মাননীয় আলুওয়ালিয়াজি এবং যুব নেতা মাননীয় বাবুল সুপ্রিয় উপস্থিত আছেন। আমাদের রাজ্যসভার সদস্যা শ্রীমতী রূপা গাঙ্গুলি, তিনিও আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন। এছাড়া আমাদের সহ অবজারভার মাননীয় সুরেশ পূজারী, তিনি সর্বভারতীয় সম্পাদক, আমাদের পূর্ব সভাপতি বর্তমান সর্বভারতীয় সম্পাদক মাননীয় রাহুল দা উপস্থিত আছেন। এছাড়া বরিষ্ঠ নেতাদের মধ্যে স্বপন দা, মাননীয় শ্রমিক দা, এছাড়াও একাধিক বরিষ্ঠ নেতা এবং যুব মোর্চার সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন বাংলার কার্যকর্তাদের উৎসাহিত করার জন্য। আমার প্রদেশের এবং দূর দূর থেকে আগত সমস্ত কর্মী বন্ধুদেরকে আমি অন্তর দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এখানে স্বাভিমান সমাবেশ করেছি যখন পশ্চিমবাংলায় যুবরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, তাদের মান সম্মান নেই, তাদের রোজগার নেই, তাদের সুরক্ষা নেই। তাই পশ্চিমবাংলার যুবকদেরকে আজকে বাংলা ছেড়ে পশ্চিম ভারতে গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে যেতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায়। কারণ তাদের উপার্জনের যে রাস্তা, কেন্দ্র সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্পের যে লাভ, সেটা এখানকার যুবকরা পাচ্ছেন না। বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীরা সে অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন। কেবল ভোটের রাজনীতি করার জন্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাতেও ভোট কম পড়ছে বলে রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে। এইরকম একটা দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে আমরা বাংলায় থাকছি। এখানে আইন কানুন নাই। পুলিশ তার একটাই কাজ, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে কেস দেওয়া, আমাদের প্রোগ্রামকে আটকানো, আমাদেরকে মারপিট করা, আমাদের সংগঠনকে আটকানো। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুলে টিচার নেই, প্যারা টিচাররা মাত্র 8,000 টাকা মাইনা পান। 5,000 টাকা দেওয়ার কথা হয়েছে, জানি না কবে পাবে ওরা।
স্কুলে টিচার নাই, কলেজে লেকচারার নাই, ভাইস চ্যান্সেলর টিকতে পারছেন না। স্কুল কলেজ লেখাপড়া নয়, মারপিটের আখড়া হয়ে গেছে। অনেক বছর ধরে টিচার রিক্রুটমেন্ট হয় না। প্রাইমারি স্কুল টিচার এবং অন্যান্য সহায়ক টিচাররাও তাদের কোনো সম্মান নাই, তাদের আর্থিক যে সহায়তা সেটাও বাড়ানো হচ্ছে না। এখানে গণতন্ত্র নাই। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ছোট্ট সভা করতে গেলেও অনুমতি পাওয়া যায় না, হল পাওয়া যায় না, মাঠ পাওয়া যায় না। একটা স্ট্রিট কর্নার করার জন্য হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিতে হয়। আর যিনি এখানে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেছেন সেই মুখ্যমন্ত্রী এখানে গণতন্ত্রের সবসাধনা করছেন এবং সারা ভারতবর্ষে ঘুরে ঘুরে বলছেন বাংলায় গণতন্ত্র নাই। বলছেন নাকি সুপার ইমার্জেন্সি। কিরকম ইমার্জেন্সি? এখানে আমাদের যেদিন নেতারা গ্রামের দিকে যান তাদের গাড়ি আটকানো হয়, তাদের মারপিট করা হয়, গ্রামে মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দেওয়া হয়নি। তারপর তিনি বলছেন নাকি ভারতবর্ষে ইমার্জেন্সি চলছে। এটা যদি ইমার্জেন্সি নয় তাহলে ইমার্জেন্সি কাকে বলে? বন্ধুগণ, এখানে কোনো কলকারখানা নাই, শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতার কোনো নাম নাই। যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলতো সেখানে বোমের আওয়াজ চলছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হাহাকার চলছে। দুষ্কৃতকারীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, পুলিশ তাদের গায়ে হাত দেয় না। রোজ খুন জখম হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশ থেকে সিমি, জামাত, আল কায়দার উগ্রপন্থীরা ঢুকছে, আর বিহার থেকে যারা অস্ত্র তৈরি করে তারা ঢুকছে। এখানে বেআইনি অস্ত্র কারখানা জেলায় জেলায় হয়ে গেছে, প্রত্যেক দিন পুলিশ ধরছে। এখানে অস্ত্র তৈরি হয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে, সারা ভারতবর্ষে রপ্তানি হচ্ছে। এখান থেকে অস্ত্র এবং উগ্রপন্থী সারা ভারতবর্ষে রপ্তানি হচ্ছে। সারা দেশে বম বন্দুকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় জেলায় জেলায় বোমা ফাটছে, মাইন ফাটছে, AK-47 পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশি উগ্রপন্থীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের গায়ে হাত দিচ্ছে না। পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে, থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ধরনের গণতন্ত্র? পশ্চিমবঙ্গ নাকি এগিয়ে চলেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এগিয়ে বাংলা। কোন দিকে এগিয়ে বাংলা? খুন ধর্ষণে এগিয়ে বাংলা। মা বোনদের সম্মান নেই, সবচেয়ে বেশি নারী পাচার, সবচেয়ে বেশি পারিবারিক হিংসা, সবচেয়ে বেশি শিশু পাচার পশ্চিমবাংলা থেকে হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্র হত্যা এখানে হচ্ছে। এখনো 20,129টা পঞ্চায়েত সিটে নির্বাচন বাকি আছে। সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে আমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য। এ কোন গণতন্ত্র? এ কোন বাংলা? আমরা কোন দিকে এগিয়ে চলেছি? তাই ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবাংলার কার্যকর্তারা দিন রাত পরিশ্রম করছেন, গুন্ডা এবং পুলিশদের সঙ্গে লড়াই করছেন। কারণ পশ্চিমবাংলাটায় সুন্দর নবপ্রভাত আনার জন্য, পরিবর্তন আনার জন্য, যুবকদের হাতে চাকরি, মহিলাদের সম্মান, কল কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার, শিক্ষকদের, অধ্যাপকদের সম্মান এবং আর্থিক তাদের সহায়তা বাড়ুক, এটা আমরা চাই। তাই লড়াই করছি। বন্ধুগণ, এখানে আইন কানুন নেই, শিক্ষা ব্যবস্থা নেই, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই। সমাজ বিরোধীরা এখানে দাবিয়ে বেড়াচ্ছে। খুন জখম এত দূর হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের 27 জন কর্মী মারা গেছেন। তার মধ্যে OBC, ST, SC এবং মাইনরিটি সংখ্যা বেশি। প্রায় 75 জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন, পঞ্চায়েতে বলিদান হয়েছেন। সারা ভারতবর্ষে কোথাও নির্বাচন এরকম আমরা দেখিনি। সারা ভারতবর্ষে কোনো বুথে রিগিং হয় না, একটা ঢিল মারে না কেউ, একটা খুনের বিন্দু পড়ে না। এখানে কিন্তু নিয়মিত হয়ে চলেছে। তাই বন্ধুগণ, আজকে যুবকরা লক্ষ লক্ষ সংখ্যা এই জন্য এসেছেন। পশ্চিমবাংলার পরিবর্তন চাই, পশ্চিমবাংলাকে সোনার বাংলা করতে চাই। আমরা পশ্চিম বাংলাদেশ করতে দিতে দেবো না। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় অমিত শাহ আমাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য এসেছেন। তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি বাংলার প্রতি আছে। তাই সবচেয়ে মূল্যবান সময় আমাদের জন্য দিয়েছেন। আমরা তার ভাষণ শোনার জন্য এসেছি। আমি আশা করব যে সমস্ত কর্মীরা গতকাল থেকে রাত জেগে দূর দূর থেকে এসেছেন, যারা রাস্তায় বিভিন্ন বাধা পার হয়ে মার খেয়ে পুলিশের অত্যাচার, গুন্ডাদের অত্যাচার পার করে এসেছেন, সবাইকে আমি আরেকবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং মাননীয় সভাপতির ভাষণ তারা মন দিয়ে শুনুন। জায়গা ছোট আছে, দাঁড়াবার জায়গা নেই, বসার জায়গা নেই। আমরা বড় জায়গা চেয়েছিলাম, কিন্তু সরকার আমাদের দেয়নি। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে কলকাতার রাস্তা ভরিয়ে দিয়েছেন। যেখানেই জায়গা দেবে আমরা সেখানেই সভা করব, আইন মেনে সভা করব, আইন মেনে আন্দোলন করে বাংলার পরিবর্তন করব। এই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। অসংখ্য ধন্যবাদ ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি মাননীয় শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। এখন বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব এই বাংলার কুখ্যাত দিদির বিরুদ্ধে এক দিদি যুদ্ধ করতে এসেছে মাননীয়া শ্রী পুনম মহাজন মহাশয়াকে।
भारत माता की। मुझे पता है बहुत गर्मी है, लेकिन इस गर्मी की ऊर्जा लेके ये झांकी हम पूरे पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहते हैं। हाथ ऊपर करके हमारे अध्यक्ष जी का हम स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसनस्थ दीदी को जवाब देने के लिए हमारे भाई आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित भाई शाह जी, इस पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी, आदरणीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय SS आलूवालिया जी, सुरेश पुजारी जी, आदरणीय मुकुल दादा रॉय जी, आदरणीय राहुल दादा जी, आदरणीय बाहुल सुप्रियो जी, आदरणीय रूपा गांगुली जी, सुब्रतो जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के आए हुए महामंत्री सौरभ चौधरी जी, अभिजात मिश्रा जी, युवा मोर्चा के मेरे यहाँ के अध्यक्ष देबोजीत सरकार जी, सपन दादा जी, सारे बैठे हुए युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, पूरे देश भर से आए हुए मेरे युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारीगण और यहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग। मैं कैमरा को बोलना चाहती हूँ, एक बार जूम करके वहाँ की जनता दिखाए पूरी। मैं इतना ही अमित भाई को दिखाना चाहती हूँ और अमित भाई भी दीदी को ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी मेरी बाकी है। आज पश्चिम बंगाल की मां काली की इस भूमि को मैं पूरी वंदन करती हूं, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिया। उन स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, रास बिहारी बोस जी, जतेंद्र दास जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जिनकी आज हम 111वीं हमारे बलिदान दिवस 11 अगस्त को मना रहे हैं, ऐसे सबसे युवा शहीद खुदीराम बोस जी, जिन्होंने हमें राष्ट्रगीत इस देश को दिया, ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और वंदे मातरम का हम पूरे देश भर में नारा करते हैं, ऐसे हरे बंकिम चंद्र जी। इन सबको नमन करी हुई इस धरती को एक राष्ट्र, एकता और अखंडता के साथ मैं पूरा नमन करना चाहती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ये झांकी हम पश्चिम बंगाल में ये दिखाना चाहते हैं, ये वही झांकी है कि उस परिवर्तन के नाम लेके दीदी सरकार लेके आई। कहाँ हम परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, लेकिन परिवर्तन लोगों का नहीं हुआ, परिवर्तन सिर्फ कलर का हुआ, परिवर्तन रंगों का हुआ। वही लाल रंग कम्युनिज्म का परिवर्तन का दीदी के साड़ी के साथ व्हाइट और ब्लू कलर का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन पश्चिम बंगाल की जनता का नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ तो रोज वैली और ये वैली और वो वाले शारदा नारदक स्कैम करने वाले लोगों के जिंदगी पर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लोगों का परिवर्तन हुआ। क्या चुनाव में विषय लेके आदरणीय दीदी आगे बढ़ रही थी? माँ माटी मानुष। माँ माटी मानुष का हम अर्थ जानते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद महिला है तो कहीं ना कहीं नाम की तरह मन में भी कहीं ना कहीं ममता होगी। लेकिन मैं पहले दिन से कह रही थी, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में स्थिति है, मैं उनको ममता नहीं सिर्फ यू टर्न दीदी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि महिला अपेक्षित रहता है कि मन में ममता होनी चाहिए। आज वो माँ जिसको माँ के रूप से पश्चिम बंगाल में देखा जाता था, आज उस माँ में ममता नहीं रही। आज सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार होते हैं तो पश्चिम बंगाल में होते हैं, लेकिन माँ और ममता इसमें काम नहीं करती। जब माटी के बारे में बात किया जाता है, यही माँ के खुद के एमएलए छोटे छोटे तालाबों में माटी भर भर के बड़े बड़े रास्तों के गैंग वॉर कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और मानुष, माँ माटी मानुष के बाद मानुष का विचार करें। आज वही पश्चिम बंगाल का मानुष हताश है, हतबल है, बेरोजगार है, तकलीफ से गुजर रहा है। ये परिस्थिति हम देख रहे हैं। 2001 इलेक्शन के स्लोगन में माँ माटी मानुष नहीं तो मैं ममता अमानुष, ये विचार करके दीदी आगे बढ़ रही है। ये स्लोगन तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने करना चाहिए कि माँ माटी मानुष नहीं तो मैं ममता अमानुष हूं और मैं मानुष की तरह रहना नहीं चाहते। यही वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। हर कोई कहता है टीएमसी का अर्थ क्या है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से हमारे सब जगह बैनर लगे हैं, लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल से लोग आए हैं। इस पश्चिम बंगाल की संख्या से लोग आए तो हमारे बैनर फाड़े जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के खून किए जा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। अभी पथराव हुआ, अभी गोलीबार हुआ, तो भी धीट रूप से हमारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं टीएमसी को इतना ही कहना चाहती हूँ, वो तृणमूल कांग्रेस नहीं,
टेरर मेकिंग मशीन बन चुका है और लोगों को टेरराइज करने की कोशिश कर रहा है। ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि बहुत बड़े यूटर्न के नेता, हमारे एक दिल्ली में भी केजरीवाल बैठे हैं, वो कहते थे दिल्ली को मैं लंदन बनाऊंगा। केजरीवाल जी कहते रह गए कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, तो लंदन बना नहीं पाए। आदरणीय राहुल गांधी जी कहते कि अमेठी को सिंगापुर बनाऊंगा, लेकिन वो सिंगापुर नहीं बना पाए। बट ममता दीदी ने चुपचाप एनआरसी के नाम से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश पहले ही बना दिया। ये स्थिति ममता दीदी ने यहाँ पे की है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम यहाँ पे हो रहे हैं, जिस प्रकार से युवा अपेक्षा कर रहे हैं, युवा ये अपेक्षा कर रहा है पश्चिम बंगाल में कि जो मैं सपना देख रहा हूं, मैं युवा हूं, ये मेरा सपना मेरे माटी के साथ जुड़े, मेरे बीजेपी के साथ जुड़े। मैं युवा हूं, मेरा सपना पश्चिम बंगाल के साथ जुड़े। मैं युवा हूं, मेरा सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से जुड़े। आज विचारों के जोड़ने के सपने के साथ हम आगे बढ़े हैं। जिस प्रकार से राष्ट्र में, मैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम इसलिए ही लेती हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, और आज उन्होंने जो विश्व गुरु देखने का सपना पूरा करने की कोशिश की है, वो सपना कोई पूरा करेगा, इस यूटर्न दीदी को दिखाएगा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी करके हमारे सामने एक पूरा विकल्प है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से एनआरसी के मुद्दे पे सब जिलों में अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं दीदी को इतना ही कहूंगी, 2005 में क्या और 2018 में क्या है, जनता ने पूरा देख लिया है। युवाओं के शिक्षण के नाम से, उनके नौकरी के नाम से आप सिर्फ ये कह रहे हो कि 5,000 से लेके 5 लाख तक रुपए की घूस लेके युवाओं का एडमिशन के लिए टीएमसीपी के लोग काम पे लगे हुए। अभी बस होगा। मैं इतना ही कहूंगी, आज ये जो झांकी हमने कोलकाता में दिखाई है, कोलकाता के लोगों ने दिखाई है, पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं तो आप सबके रूप से पूरे देश भर में झांकी दिखाई है कि जो देश की तोड़ने की बात करेगा, जो कहेगा सिविल वॉर हो सकता है, ऐसे देशद्रोही विचारों को हम उखाड़ के फेंक देंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे और युवा मोर्चा के रूप से युवाओं के साथ जुड़ेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, इस ऊर्जा को, कि मेरे पिताजी हर वक्त कहते थे और हर वक्त यह कहा जाता था कि कमल की ताकत क्या होती है, और इस कमल की ताकत में अंत में यही कहूंगी कि कमल की हर एक पंखुड़ी जोहरा घास के फूल पे भारी होगी। आप जानते हैं ना, जोहरा घास और फूल आता है। कमल की एक एक पंखुड़ी जोहरा घास के फूल पे भारी होगी। आज की रात टीएमसी की है दोस्त, 2019 और 21 की सभा बीजेपी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये ऐतिहासिक सभा यही बताती है कि ये वही मेयो रोड है जहां पे टीएमसी ने अपनी जंग की शुरुआत की है, और टीएमसी के जंग की शुरुआत के बाद उसका खात्मा करने के लिए आज हम यहां से कसम ले जाएंगे और पूरे पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएंगे। इतनी अपेक्षा करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे भारत माता की। धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয়া শ্রীমতী পুনম মহাজনজি মহাশয়াকে। এখন অনুরোধ করব ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় শ্রী অমিত শাহ মহাশয়কে ক্ষুদিরাম বোসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে আমাদেরকে সম্বোধন করার জন্য। भारत माता के, भारत माता के। ক্ষুদিরাম বোস अमर रहे। আপনারা বলবেন अमर रहे। ক্ষুদিরাম বোস अमर रहे। ক্ষুদিরাম বোস अमर रहे। ক্ষুদিরাম বোস अमर रहे। ক্ষুদিরাম বোস अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय, भारत माता के जय। बच्चे थी खाली कराई देन पंखवा बाजू का।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे युवा मोर्चे की रैली है, ऐसी आवाज आएगी क्या? कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बंगाल में परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष महाशय, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन पूनम महाजन जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सरदार अहलूवालिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई श्री बाबुल सुप्रियो जी, मुरलीधर राव जी, शिव प्रकाश जी, बंगाल के प्रभारी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल सिन्हा जी, ममता दी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ आए हैं ऐसे भाई मुकुल रॉय जी, यहां से ही सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी, स्वपन दास गुप्त जी, देवजीत सरकार जी, श्री मनोज टिग्गा जी, और आज की रैली में लाखों की संख्या में आए हुए प्यारे युवा मित्रों, भाइयों और बहनों। मित्रों, आज ये रैली इस बात को दिखाने वाली है, इस बात की परिचायक है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल, ये बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष बाबू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चैतन्य महाप्रभु, काजी नजरुल इस्लाम और भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है। मित्रों, आज जब युवा मोर्चा की ये रैली हो रही है, आज के दिन ही बंगाल के सपूत खुदीराम बोस का शहीद दिन है। यही खुदीराम बोस ने 18 साल की आयु में इस देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़कर अपना भारत माता के प्रति बलिदान देने का काम किया था। मित्रों, बहुत समय से रैली तय, रैली के बारे में अनेक प्रकार के व्यवधान डालने का काम किया गया। आज बंगाल की जनता इसको देख न पाए, इसलिए सारी बांग्ला चैनलों को डाउन कर दिया गया है। अभी ये रैली बंगाल की जनता देख नहीं पाती है, मगर ममता जी कान खोल कर सुन लो, हमारी आवाज बंद करने से यहां रुकेगी नहीं। पूरे बंगाल के हर जिले में मैं जाऊंगा और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन लेके जाएंगे। लोकतंत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने आवाज दबाने का प्रयास किया है, आवाज और मुखर कर बड़ी होकर जनता तक पहुंची है। कोई लोकतंत्र में आवाज दबा नहीं सकता। मित्रों, आज पूरे एयरपोर्ट से रैली तक उन्होंने बैनर लगाए हैं,
बांग्ला विरोधी बीजेपी गो बैक। ममता जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम कैसे एंटी बांग्ला हो सकते हैं? हम कैसे बंगाल विरोधी हो सकते हैं? हमारी पार्टी की स्थापना ही बंगाल के महान सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। अरे ममता दी, हमारा बांग्ला के प्रति आदर, प्रेम, पूज्य भाव वोट के लिए नहीं है। हम रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को हृदय से पूजन करते हैं, हमारे हृदय में बसाकर उनके आदर्शों पर चलते हैं। आप भूल गई हो कि इंदिरा जी के जमाने में ही कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर एनआरसी पर चर्चा हो रही थी और ममता दी ने पूरे दिल्ली में एनआरसी का विरोध करने का काम किया। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये एनआरसी क्या है? एनआरसी है आसाम के अंदर से विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर चिन्हित कर कर बाहर निकालने की प्रक्रिया एनआरसी है। इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग हैं। मुझे बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग थलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुकेगी। आप भी विरोध कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी विरोध कर ले, मगर हमारा कमिटमेंट है असम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया को न्यायिक तरीके से हम समाप्त करेंगे और एक एक घुसपैठिए को चिन्हित कर कर ही छोड़ेंगे। मित्रों, मैं ममता दी को पूछना चाहता हूं कि आप क्यों घुसपैठिए को रखना चाहती हैं? यही ममता दी थी। देखिए साहब, लोग कैसे कैसे बदलते हैं। 2005 में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते थे। ममता दी ने लोकसभा सर पे ले ली, लोकसभा के अध्यक्ष पर, स्पीकर पर कागज फेंके, लोकसभा बंद करा दी और नारा लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। आज वही बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए हैं। और ममता दी उनको बांग्लादेश में, उनको भारत में रखना चाहती है, असम में रखना चाहती है। ममता दी, ये स्पष्ट करिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्पष्ट करें कि आप देश की सुरक्षा को आगे रखते हो या अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे रखते हो। मित्रों, एनआरसी जो काम कर रही है वो आसाम एकॉर्ड के तहत कर रही है। ये आसाम एकॉर्ड को किसने बनाया? आसाम एकॉर्ड को उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी थे, उन्होंने बनाया। उस वक्त कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आज वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए राहुल गांधी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करते हैं। मित्रों, मैं इतनी बड़ी लाखों की भीड़ को पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर खतरा है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए, खतरा है या नहीं है? बंगाल के अंदर जो बम धमाके होते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए करते हैं या नहीं करते हैं? जरा जोर से बोले, करते हैं या नहीं करते हैं? उनको निकाल बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दी, मैं बता देता हूं,
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है, वोट बैंक बाद में आता है। और हम एनआरसी की प्रक्रिया आप कितना भी विरोध कर दो, हम अटकाएंगे नहीं। और यहां बंगाल में आकर तृणमूल कांग्रेस भ्रांति फैला रही है कि एनआरसी के तहत शरणार्थी भी चले जाएंगे। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल में जितने शरणार्थी है सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लेकर आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कोई शरणार्थी को वापस भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं। ममता दी, भ्रांति फैलाना बंद करो। कहां जाएंगे मेरे शरणार्थी भाई? शरणार्थी भाइयों को यहां रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस को यह भी पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लोकसभा और राज्यसभा में आएगा, शरणार्थियों को नागरिकता देने का अमेंडमेंट आएगा, आप समर्थन करोगी या नहीं करोगी, इसकी स्पष्टता करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर स्पष्टता करनी चाहिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां शरण लेकर आए हैं, उनको नागरिकता देने में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है, इसका भी चुनाव के पहले घोषणा करना चाहिए। मित्रों, ह्यूमन राइट की बात हो कि जो घुसपैठिए हैं उनके मानव अधिकार का क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को, बंगाल के नागरिकों का, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का, इनके ह्यूमन राइट की आपको चिंता नहीं है? इनकी रोजी रोटी, इनकी रोजगारी, इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनकी सुरक्षा ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मार रहे हैं, इसकी आपको चिंता है या नहीं है? आपको चिंता हो न हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुसलमान भाइयों की चिंता हम कर रहे हैं। मित्रों, अगर जिस प्रकार से ममता बनर्जी के शासन में घुसपैठ जारी है, ये घुसपैठ को रोका नहीं गया तो पश्चिम बंगाल सलामत नहीं है। और घुसपैठ रोकने का सबसे कारगर रास्ता एनआरसी है। इसीलिए आसाम में एनआरसी की प्रक्रिया को शांति से समाप्त करना चाहिए। मित्रों, मैं फिर से एक बार इस महान भीड़ के सामने, लाखों की संख्या के सामने 24 स्क्रीन रखने पड़े हैं, इतने दूर तक ये रैली फैली है। इन सारे बंगाल के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं कि आप एनआरसी का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? जरा जोर से बोलिए, करते हो या नहीं करते हो? अरे ममता दी के कान बहरे हैं, ऐसी धीरी आवाज से सुनाई नहीं पड़ेगा। जोर से बोलिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? फिर एक बार बोलिए, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? एनआरसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक ऐसी प्रचंड ताकत खड़ी करिए कि ममता दी को भी डरकर एनआरसी का समर्थन करना पड़े। इस प्रकार की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी पड़ी। जब से ममता दी आई है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, कानून और व्यवस्था बम धमाकों के खिलाफ लड़कर आई,
मगर जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, मित्रों, नारदा, शारदा, रोजवेली, सिंडिकेट का भ्रष्टाचार, भतीजे का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का एक सीरीज ममता दी ने चला है। कोल माफिया, पोर्ट माफिया, केटल माफिया आज पूरे बंगाल पर गिरफ्त जमा कर बैठे। ये भ्रष्टाचार से अगर पश्चिम बंगाल को मुक्त करना है तो पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों की धज्जियां उड़ रही। पहले जो बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, बंगाल के अंदर रामकृष्ण के भजन सुनाई पड़ते थे, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनाई पड़ता था, वो बंगाल में आज बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। हर रोज सुनते हैं यहां से बम का फैक्ट्री मिला, यहां से पिस्टल का फैक्ट्री मिला, सारे कारखाने बंगाल के अंदर बंद हो रहे। बम और पिस्टल बनाने के कारखाने तृणमूल कांग्रेस के शासन में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मित्रों, अपराध के अंदर सारे रिकॉर्ड बंगाल ने तोड़े। अगर अपराध मुक्त बंगाल चाहिए, पुराना सांस्कृतिक बंगाल चाहिए, पश्चिम बंगाल को अपनी संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ाना है, तो तृणमूल कांग्रेस की जगह यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। अभी अभी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के अंदर पूरे देश का रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ दिया। पूरे देश में कभी भी पंचायत चुनाव 5% से ज्यादा निर्विरोध बिनहरीफ नहीं हुए हैं। यहां पर 35% सीट बिनहरीफ हो गई, किसी को पर्चा ही नहीं डालने दिया। 65 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस अगर मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर आप बच जाओगे, तो आप कम्युनिस्टों का शासन याद कर लो। ममता दीदी, हत्या करने वाले कभी बचते नहीं। जब जनता जागती है, हत्या करने वालों ने गद्दी छोड़नी पड़ती है। मित्रों, हमारे 65 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, करोड़ों लोगों को वोट नहीं डालने दिया, फिर भी 7000 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल विजयी रहा है। ममता दी, 7000 सीटों पर। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है। आप, अभी मैं सुन रहा था तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो तृणमूल कांग्रेस के नेता बड़े गर्व से कह रहे थे बंगाल में नहीं। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल के हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के हर समर्थक को आह्वान करना चाहता हूं, ये 19 सरकारों का कोई मतलब नहीं है जब तक बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, विवेकानंद रामकृष्ण की धरती पर, गुरुवर टैगोर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, हमारा विजय रथ रुकना नहीं चाहिए। मित्रों, बताओ, बंगाल के अंदर आप परिवर्तन करेंगे? जरा जोर से बोले, करेंगे? अरे सिर्फ परिवर्तन नहीं करना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए तृणमूल कांग्रेस को, और बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मित्रों, तभी बंगाल के अंदर विकास हो सकता है। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश की जीडीपी में
25% योगदान था। जब कांग्रेस का शासन गया, कांग्रेस पार्टी ने आधा कर 13% कर दिया। जब कम्युनिस्ट गए 2011 में, तो उसको भी 1/4 कर 4% कर दिया। और परिवर्तन के लिए ममता दी को पश्चिम बंगाल की जनता लाई। ये 7 साल में ममता दी ने भी 4% से घटाकर 3% कर दिया। मित्रों, विकास का कंट्रीब्यूशन बंगाल का 25% से 3% हो गया। ये तृणमूल कांग्रेस, एक कांग्रेस पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल को विकास नहीं दे सकती है। तीनों को बंगाल की जनता ने मौका दिया है या नहीं दिया, बताइए जरा जोर से बोलिए, दिया या नहीं दिया? ये तीनों विकास नहीं कर पाए हैं। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, नरेंद्र मोदी बंगाल के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। ममता दी यूपीए पर बहुत वारी जाती हैं, समर्थन करती है, कभी हाँ बोलती है, कभी ना बोलती है, मगर वो साथ में ही है। जब यूपीए की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन आया था और 13th फाइनेंस कमीशन ने 5 साल में बंगाल के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,32,000। जरा जोर से बोलिए, कितना दिया था? नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग आया, 14th फाइनेंस कमीशन आया, 1,32,000 करोड़ से बढ़ाकर पश्चिम बंगाल को 3,59,059 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, 3,59,000 करोड़ रुपया दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के गांव के नागरिकों को आपके गांव में रुपया पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलिए, पहुंचा है? कहां गया भैया, कहां गया? मोदी जी ने तो भेजा है, 3,59,000 करोड़ कहां गया? ये भतीजे और सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है, तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक योजनाएं, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, वो लेकर आई। मुद्रा बैंक में 1,28,000 करोड़ युवाओं को, 1,28,00,000 युवाओं को 45,000 करोड़ का लोन दिया। जनधन योजना में 3 करोड़ लोगों के खाते खुले। उजाला योजना में 1 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब दिया गया। उज्ज्वला योजना में 5 लाख महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अगर बंगाल को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो यहां कांग्रेस और तृणमूल का गठबंधन काम नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट भी यहां विकास नहीं कर सकते। विकास अगर कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। और विकास के साथ साथ सभी लोगों के प्रति समान व्यवहार भी भारतीय जनता पार्टी करे। आप मुझे बताइए, दुर्गा पूजा के अंदर मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन नहीं करने देते हैं, ये वाजिब है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए क्या? सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद कर दी गई, होना चाहिए क्या? मैं गारंटी देता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डंके की चोट पर दुर्गा विसर्जन होगा और सरस्वती की पूजा होगी। कोई रोक नहीं सकता आपको। और ममता दीदी, अब हिम्मत मत करिएगा,
अगली बार हिम्मत करी तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आपके सचिवालय की ईंट बजा देगा, मगर दुर्गा पूजन होकर रहेगा। मित्रों, तुष्टीकरण की भी सीमा होती, वोट बैंक की राजनीति की सीमा होती। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजन नहीं होगा, सरस्वती पूजन नहीं होगा, रोहिंग्या घुसपैठियों को घुसाओगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाओगे। बंगाल को क्या बनाना चाहते हो आप? ममता जी ने ये बात बंगाल की जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। और मित्रों, आज उन्होंने चैनल बंद कर दी। मेरी आवाज बंगाल की जनता तक न पहुंचे इसकी व्यवस्था करी, मगर मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो फौज है, ममता जी गांव गांव गली गली घर घर जाएगी और आपके कारनामे बंगाल की जनता तक पहुंचाएगी। बताइए भाइयों, बताइए बहनों, बंगाल के घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे? जरा जोर से बोलो, जाएंगे? तृणमूल कांग्रेस के कारनामे बताएंगे? भाजपा को जिताएंगे? लोकसभा में 22 सीट का लक्ष्य पार करेंगे? फिर से एक बार रामकृष्ण विवेकानंद श्यामा प्रसाद का बंगाल बनाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।